Okay, I am the winner of Persona Mrs. Quarantine Mrs. India Universe 2021. I am Dipti Chaudhary. I am a medico. I am a pediatrician, and I come from Nasik. I am working in my field since 13 years, and I am very much attached to my field, as well as I am very much honored by all the Persona team for giving me this wonderful award. As a working with the NGO, I work with two NGOs in Nasik which work for underprivileged children as well as empowerment of women. Because the empowerment of women and underprivileged children are the very big factor where our country lacks, and hence we should take these people ahead so as our country can develop in a proper sector. And I am going to represent this title ahead in internationally by the end of December, and I promise to take this title ahead to various countries so that I can continue my work in the empowerment of the women, and as well as working for the children. Not only the underprivileged, but all the children should be getting good food, good quality of love from their parents, and good nourishment and good education, so that they build up into a very good future candidates. It's very necessary. Thank you. Thank you so much. Uh, okay, fine, fine, fine. I am Mrs. Archana Dikshit, winner of Persona Quarantine Mrs. India Asia Pacific. And I'm really thankful that I have won this award today. I've got to know about this, one of my friend. And anything would you like to ask about that? मैम ये कैसा लग रहा है आपको आज आप विनर हुए तो किस तरीके का आपको फील हो रहा है किस तरीके का आपको आज ये लग रहा है मुझे थोड़ा बताइए मुझे ये इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है, तो इसलिए आई एम सो एक्साइटेड. इवन आई मीन थ्रू आउट द डे आई केप्ट ट्रबलिंग मिसेस प्रियंका कि ये कैसे होगा, क्या क्या होने वाला है. आई वॉज रियली एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस अवार्ड. एंड बहुत ही अच्छा लग रहा है. आई एम रियली थैंकफुल टू एंड इवन ऑल ऑफ यू फॉर दिस. मैम कितना डिफरेंट होता है कि एक फैमिली को लेके चलना प्लस इस पे एक फोकस करना तो उसके बारे में कुछ बताएंगे किस तरीके से आपने पूरा फोकस किया और आज इसीलिए येस डेफिनेटली आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट दिस. मैं बिल्कुल ही एक मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ. पहले तो मुझे लगा नहीं था कि मैं ये सब कुछ कर पाऊँगी, क्योंकि बीइंग अ मैरिड वूमन इट्स लिटिल डिफ़िकल्ट, क्योंकि घर पे भी काम करना है, घर के काम होते हैं, प्लस सोशल वर्क. आई एम डूइंग अ सोशल वर्क एज वेल. आई एम वर्किंग फॉर नेवल बाइज वेलफेयर एसोसिएशन, तो वो भी मैं कर रही हूँ. और मुझे लग रहा था पता नहीं शायद ये मैं ना कर पाऊँ मेरी लाइफ में. But when I participated in this pageant, it has completely changed my personality. भले ही मेकअप हो या वॉकिंग टिप्स हो या इवन स्पीकिंग स्किल्स, एवरीथिंग हैज चेंज्ड इनटू मी. परसोना से जुड़ के भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं, क्योंकि मैंने ये पैजेंट में जब से हिस्सा लिया है तब से आई हैव गॉट कनेक्टेड टू ऑल दीज पीपल. दे आर वेरी फ्रेंडली एंड बहुत ही हम्बल है. वॉट एवर यू आस्क देम दे आर ऑलवेज रेडी टू आंसर यू. So it's really nice getting connected to Persona, all the team, I should say. उनका मैसेज देना चाहेंगे जो घर में मिसेज होती है जिनका कुछ इच्छाएं होती है कि हम भी ऐसा करें बट फिर भी वो नहीं कर पाती उनके लिए क्या मैसेज रहेगा. ये मैं नाइस सिंह सवाल है आपका. मैं ये कहना चाहती हूँ, हर लेडी ने अपने आप को कहीं ना कहीं जाके प्रूव करने का एक इच्छा होती है हर लेडी में. तो एंड शी ऑलवेज थिंक्स कि मैं क्या करूँगी और मैं आगे जा पाऊँगी, मेरा अपना खुद का नाम कमाऊँगी. तो मैं हमेशा कहती हूँ कि जस्ट ट्राई, पार्टिसिपेट वेर एवर यू वॉन्ट टू. ऐसे नहीं है कि एक ही इसमें ले सकते हो. देर आर सो मेनी एवेन्यूज दीज days. Persona, definitely I will vouch for it because I know this team very well. So I would like to tell all the ladies, especially जो गृहिणी हैं, उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ कि इसमें हिस्सा लीजिएगा. एंड आई एम श्योर आपका जो पर्सनैलिटी है, ग्रूमिंग है, it will change you for the entire life. So be part of it and come ahead, or it shows our woman empowerment. So all of you women, are you ready? Very good. Thank you. Yeah, hi everyone. So my name is Isha Sharma and I'm from Mumbai. I've been chosen as, and have won this pageant as Persona Quarantine Mrs. India Women of Universe 2021. कैसा लग रहा है आज आपको पर्सनल मिलने का आपको मिला है.
Sure. जिससे आप मिले तो उसके बारे में कुछ आप बताएं। Definitely. So मुझे बहुत अच्छा लगा. I'm definitely and excited, and it's actually a vivacious, a miraculous movement for me, because this is something that I have been thinking since my childhood, that would I be able to participate, would I be getting that opportunity or not. But yes, thanks to Persona, they have given me this platform, to be as an empowered woman, to push myself, to stand up for every woman. So yeah, it's all because of Persona, and I'm really thankful for that. Thank you. तो मुश्किल होता है एक फैमिली को लेके चलना, उसको लेके चलना, उसके बाद इसमें फोकस करना, तो कितना आपको मतलब इसमें Yeah, करना चाहिए? yeah, sure. So basically, I think definitely it's really difficult, to manage your family, to manage your work, to manage your passion. But I think it's all about time management. That's what I have always believed. It's all about time management. It's your willpower. And if you truly, truly passionate about something, I think you're definitely gonna go for it, and definitely you're gonna go and achieve something. Doesn't matter if you are going to get failed or something like that, but for sure, it's your time management, your willpower. So that is the thing that goes way ahead along with your determination. So yeah, it's definitely challenging, but if you have a full support from your family, from your husband, then I think the journey is pretty much easy. Yeah, so that's what I think. क्या कहना है उनके भी क्या मैसेज रहेगा आपको, जो आपके जो लेडीज हाँ. ऐसा करना होता है उसके बाद उनके लिए आपका मैसेज? सो मेरी साइड से सारी लेडीज़ के लिए सिर्फ एक ही मैसेज है, दैट बिकॉज आई हैव सीन अराउंड माई सर्कल सेइंग दैट अभी तो शादी हो गई है, लेट्स नॉट गो अहेड, अभी तो काम करना है, बच्चों को संभालना है. दिस इज़ व्हाट आई हैव बीन हियरिंग फ्रॉम एवरी वन अराउंड माई सर्कल. सो आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, गर्ल्स, आई थिंक वी जस्ट ओनली गेट वन लाइफ, राइट. हमें ज़िंदगी सिर्फ एक ही मिलती है. सो ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट है. जो भी करना है इसी लाइफ में करना है. डजेंट मैटर वॉट एवर इट इज़, यू हैव टू गो आउट एंड स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ. सो आई वुड से हार नहीं माननी चाहिए. सपोर्ट मिले बहुत अच्छी बातें, नहीं मिले देन यू हैव टू मेक पीपल अंडरस्टैंड. यू हैव टू मेक देम सी दैट यस, इस दुनिया में मेरे लिए कुछ है. सो डेफिनेटली आई एम गोना से गर्ल्स, लेडीज, जस्ट गो फॉर इट, डोंट गेट अफ्रेड, एंड एब्सोल्युटली आई थिंक this is a very good platform. So I would say just come and participate, and for sure your dreams are gonna get a good flight. So yeah, go for it. Thank you. Thank you. My name is Neetu Shekhawat. I am from Nagpur. I am the winner of the Persona Quarantine Mrs. India International 2021. Okay. एक्चुअली मैं मेरे फ्रेंड सर्किल में मिसेस नेहा ने मुझे जब इस इवेंट के बारे में बताया, तो मैंने सोचा कि नहीं, ये इवेंट मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि बिकॉज आई एम राजपूत फैमिली से हूँ मैं. तो राजपूत फैमिली में जैसा कि पता है कि आपको कि बिल्कुल घूंघट में रहती है लेडीज़, और स्टेज पे आने का उनको मौका नहीं दिया जाता है. तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि प्रियंका ने मुझे यहाँ आने का मौका दिया, और ये मेरे लिए बहुत हैप्पीस्ट मोमेंट है. और मैं अपनी कम्युनिटी की जो लेडीज़ हैं उनको एक ये संदेश देना चाहूँगी कि खाली घूंघट में ना रहें, अपने आप को प्रूव करें और अपने आप में कॉन्फिडेंस लाएं कि आप सब कुछ कर सकती हैं. और बस मैं खुश हूँ. उनको मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि अपने आप को हमेशा फुल कॉन्फिडेंट रखें, किसी से कम ना समझें, और अगर आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो. एवरीथिंग इज़ पॉसिबल. और मैं अपने लिए कहना चाहूँगी कि आसमानों से कह दो कि अपनी उड़ान थोड़ी ऊंची कर ले, क्योंकि मेरी उड़ान थोड़ी बाकी है. थैंक यू सो मच. जी, मेरे को पर्सोना के बारे में पता चला. मेरे एक फ्रेंड है जो बॉलीवुड से कनेक्टेड है, बिकॉज़ पर्सोना के लिए प्रियंका मैडम और करण सर आ चुके थे नासिक. इससे पहले भी उनके 2 सीजन्स हो चुके थे, एंड सो आई गॉट इंटरेस्टेड, एंड इसलिए मैंने पर्सोना में अपना नाम दर्ज किया और इसमें सक्सेस पाई. मैं शायद इसे कहती हूँ कि ऐसे करना बिल्कुल गलत बात है. आज महिलाएं बहुत आगे जा चुकी है, हर कदम से कदम मिला रही है. हर फील्ड में महिलाएं कहीं भी पीछे नहीं है. चाहे आप आसमान की उड़ानों में देख लो उन्हें, या बस के कंडक्टर तक देख लो, बस ड्राइवर तक देख लो. आज एक औरत कहीं भी पीछे नहीं है. तो मैं कहना चाहती हूँ, हम क्यों पीछे रहे. किसी भी
पति को या मेरे सास ससुर को ये नहीं चाहिए कि मुझे घर में वो पीछे रखने देना चाहिए। उन्होंने बल्कि हमको सपोर्ट करके आगे भेजना चाहिए और हमें अपनी खुद की उड़ान भरने देने की पूरी कोशिश करने देनी चाहिए, सो दैट वी सक्सीड। जी, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, तो मैं एक एनजीओ थ्रू इसको आगे ले जाना चाहती हूँ। बच्चों के लिए काम करना चाहती हूँ, जो औरतें हैं उनके लिए काम करना चाहती हूँ, जिनके पास इतना मेडिकल सुविधाएं नहीं होती उनके लिए काम करना चाहती हूँ। यही नहीं बल्कि मुझे अगर कहीं ग्लैमर वर्ल्ड में कहीं चांस मिले तो मैं वहाँ भी काम करना पसंद करूँगी, क्योंकि ग्लैमर वर्ल्ड इज़ वेरी इंटरेस्टिंग वर्ल्ड। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं प्रियंका बैनर्जी, मैं मिसेस यूनिवर्स 2017 रह चुकी हूँ और हम पिछले 2 साल से शीक मिसेस इंडिया कर रहे हैं। बट ये साल हमने शीक मिसेस इंडिया का नाम चेंज करके परसोना क्वारंटीन मिसेस इंडिया कर चुके हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगा कि अभी पैंडेमिक सिचुएशन है, सब कुछ बदल रहा है, तो हम नाम भी बदल दें। तो हमने शीक से परसोना कर दिया है। और क्वारंटीन इसलिए क्योंकि पैंडेमिक सिचुएशन में हमने ये जो हमारा पैजेंट हमेशा लाइव होता था, इस बार हमने ऑनलाइन किया है, तो इसलिए उसका नाम हमने क्वारंटीन रख दिया है। बट ऑफ कोर्स अगर सिचुएशन सब अच्छी रही और सब कुछ नॉर्मल रहा तो हम अगले साल वापस इसे परसोना मिसेस इंडिया लाइव, जहाँ पे सब कुछ स्टेज में सब होगा, तो उसे हम वापस रिपीट वैसे कर लेंगे। ओके, ये हमारे ऑनलाइन ऑडिशंस और रजिस्ट्रेशंस के थ्रू आए थे। हमारे सारे चीज़ें ऑनलाइन हुई थी। इन्होंने अपनी 1 मिनट की वीडियो क्लिपिंग्स भेजी थी, जिनके वीडियो क्लिप से हमने इनको ऑनलाइन सेलेक्ट किया है और उस हिसाब से हमने उनकी सारी ट्रेनिंग भी ऑनलाइन ही की है। हमारे सारे फैकल्टीज़ ने अपने हर दिन के 2-2 घंटे दिए हैं। जो हम आमने सामने उनको ट्रेनिंग करते थे वो हमने सबने जूम ऐप में ट्रेनिंग की है। सो उस बेसिस पे हमने अपना जूम ऐप में ही फिनाले किया है और जजेस ने भी अपने सारे टाइमिंग के हिसाब से हमने वो फिनाले किया है और हमने विनर्स डिस्क्लोज़ किया है। हमारी एंट्रीज़ बहुत आई थी इस टाइम, बिकॉज सबको मालूम था ऑनलाइन है। यूजुअली ऐसे होता है कि जब हम मिसेस इंडिया करते हैं तो सबके टाइमिंग्स बहुत डिस्टर्बेंस करते हैं, बिकॉज सबकी फैमिली होती है, बच्चे होते हैं, ऑफिस होते हैं। बट यहाँ पे एक चीज़ हमको प्लस पॉइंट थी कि सबको घर पे बैठ के ट्रेनिंग लेनी थी, किसी को ट्रैवल नहीं करना था, किसी को अपने बच्चे को छोड़ के या हस्बैंड को छोड़ के या काम को छोड़ के नहीं आना था। तो ऑब्वियसली लाइफ के मुताबिक ये वाली चीज़, ऑनलाइन वाली चीज़ ज़्यादा अच्छी थी। हमने जब शीक चालू किया था, जो कि अब की परसोना हो गया है, हमने ये इवेंट मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के औरतों के लिए स्पेशली चालू नहीं किया था। हमने एक्चुअली ये चालू किया था छोटे टाउन्स और छोटे सिटीज़ के औरतों के लिए, जिनको वो छोटी शहरों से आगे बढ़ना है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जैसे बॉम्बे, दिल्ली में आना है, मीडिया में आना है, तो उनके पास कोई लिंक नहीं होता है, उनके पास कोई मीडियम नहीं होता है। किस डायरेक्टर से मिलना है, किस प्रोडक्शन कंपनी से मिलना है, फ़ोटोशूट्स कैसे होते हैं, पोर्टफोलियोज़ कैसे दिए जाते हैं, तो और ग्रूमिंग में क्या क्या लगता है, तो उनको ये सब चीज़ें नॉलेज नहीं थी। तो ये मीडियम से, ये पैजेंट के मीडियम से हम उनको वो ग्रूम करके उनको एक्चुअल प्लेटफॉर्म देना चाहते थे इस इंडस्ट्री के लिए। तो बेसिकली हमारा ये पैजेंट छोटे शहरों की औरतों के लिए ही बेसिकली बिल्डअप था। हमारा यूट्यूब में अगर आप देखोगे तो अभी शीक मिसेस इंडिया है, हमारा वेबसाइट भी है जो हम बहुत ही जल्दी शीक से परसोना में कन्वर्ट कर लेंगे। हमारा प्रोडक्शन हाउस भी है, त्रिम्बक राज एंटरटेनमेंट, जहाँ पे हम अपने सारे विनर्स को ऑडिशंस के लिए भेजते हैं। वो ऑडिशंस में कैसे करते हैं वो उनका टैलेंट के ऊपर वो होता है, बट हमारा है कि हम उनको डायरेक्टली एक OTT प्लेटफॉर्म, एक मीडियम में भेज देते हैं विदाउट एनी हैसल, और जो भी उनको उस चीज़ के लिए ग्रूमिंग रिक्वायर्ड होती है वो हम उनको प्रोवाइड करते हैं। मैं यही बोलूँगी कि एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ, जैसे कि औरतें
बेटियां भी होती है, बीवी भी होती है, माँ भी होती है, बहनें भी होती है। जब औरतें बेटियां होती है तो वो अपने डैडी पे निर्भर होते हैं। जब वो शादी करके जाते हैं तो वो अपने पति पे निर्भर होते हैं। बट मेरे ख्याल से आप कोई भी स्टेज के लाइफ में रहो, आप बेटी हो, बीवी हो, ननंद हो या सास हो, आपको हर टाइम अपने पैरों पे खड़ा रहना ज़रूरी है। इंडिपेंडेंसी, सेल्फ इंडिपेंडेंसी एक औरत के लिए बहुत ही ज़रूरी है। बिकॉज आपको ये नहीं पता कब क्या आपके लाइफ में हो जाए, और आप किसी पे अगर निर्भर रहो वो आपके लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। तो आत्मनिर्भर, बहुत सेल्फ इंडिपेंडेंसी हर औरत के लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। Yes, hi guys, my name is John Lucas. I'm from South Africa and I've been coming to India for 6 years, and yeah, it's an absolute blessing to be here. I'm actually, I was here to release the movie Opogaru, which is a South movie in Karnataka, and now I'm going to be staying here for the next year. How was today's event? The event was awesome, you know, it's great to support an NGO. I always wanted to do that here in India, so absolutely blessed to be here. Thank you. All right. Good. Thank you, guys. Look like an actor, sir, Bollywood actor, sir. हाय, दिस इज़ करण खंडेलवाल और मैं एक्टर हूँ। मेरा शो आता है दंगल चैनल पे। शो का नाम है रंजू की बेटियाँ। सो अभी अगर आप लोग ने किसी ने नहीं देखा तो प्लीज़ देखिएगा। दंगल चैनल पे 9:30 बजे आता है। अवार्ड या काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट आज मुझे ये अवार्ड मिला तो बड़ी ऑब्वियसली कि अवार्ड मिलता तो अच्छा ही फील होता है। सो आई एम फीलिंग रियली गुड। और रही बात इन एनजीओ की, तो ये लोग काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। आई एम सो प्राउड ऑफ देम। रही बात करण सिंह की, तो ही इज़ लाइक माई ब्रदर। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वो सक्सीड कर रहा है अपनी लाइफ में, एंड ही इज़ डूइंग ए वेरी गुड जॉब। सो आगे के लिए भी ऑल द बेस्ट फॉर हिम। अवार्ड बीइंग एन एक्टर, ये हमारे लिए मुझे लगता है कि पैसे, शोहरत, इन सबसे ज़्यादा होता है अवार्ड, क्योंकि ये हमें मतलब ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है अवार्ड मिलना। ऑब्वियसली कि क्या बताऊँ मैं अवार्ड के बारे में। बहुत अच्छा फील होता है। इट्स ए वेरी गुड फीलिंग। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। ऑडियंस को तो पहले तो ये कहूँगा कि मेरा शो ज़रूर देखिएगा, और मेरी वेब सीरीज़ भी आने वाली थी मिराज MX प्लेयर पे, तो वो भी ज़रूर देखिएगा। और दूसरी बात ये है कि आपको पता है कि ये कोरोना के केसेस वापस बढ़ रहे हैं। मैं यंग जनरेशन के लिए कुछ बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ इसको हल्के में मत लीजिए। मैंने भी काफ़ी हल्के में लिया था, पर जब मेरे सगे भाई को कोरोना हुआ तो उसके बाद मुझे भी एहसास हुआ कि नहीं यार, कोरोना है। वैक्सीन वगैरह सब आ चुकी है, फिर भी तब तक ये पूरी तरीके से ये ठीक नहीं हो जाता। आप प्लीज़ प्रिकॉशन लीजिए, काम वगैरह मत छोड़िए, सैनिटाइज करिए, मास्क लगाइए, और वो सब बहुत ज़रूरी है। बस थैंक यू। इतने सारे कैमरा समझ नहीं आ रहे कि कहाँ खा सबसे पहले तो मैं इस एनजीओ को, जो जीवन धारा एनजीओ है, इस संघ के जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगी, जो इतने टाइम से इस संघ को चला रहे हैं। मेरे ख्याल से ये 3rd अवार्ड है उनका, और बहुत खुशी हो रही है मुझे कि एक फिल्म रत्न से मुझे नवाजा गया है। बाकी सारे जितने भी यहाँ पे लोग आए थे उन सभी लोगों को मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगी। दुनिया भर के अलग अलग जगह के रत्न आए हुए थे यहाँ पे, जो कई फील्ड से, डिफरेंट फील्ड से थे, और उन सब लोगों को उन्होंने सम्मानित किया। तो मैं कहना चाहूँगी कि ये जो एनजीओ है ये बहुत ही अच्छा काम कर रही है। इनके कामों के बारे में मुझे थोड़ा सा डिटेलिंग में पता चला था कि इन्होंने काफ़ी सारे लोगों की जो है वो कहते हैं ना कि जन सेवा कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि बीइंग एन एक्ट्रेस एक अवार्ड हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम इस अवार्ड के लिए ही मरते हैं, और इस अवार्ड के लिए इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात भूखे प्यासे काम भी करते हैं ताकि हमारे लिए अवार्ड मिले। ये अवार्ड हमारे लिए एक तरीके का फ्यूल है।
इंडस्ट्री में अभी मैं 2-3 फिल्में मैंने साइन की हैं हाल ही में, जिसमें एक हिंदी फिल्म है, एक पंजाबी फिल्म है, और बहुत जल्दी ही मैं इन दोनों की शूट पे निकलने वाली हूँ। बहुत अच्छी को स्टार है मेरे, उनके साथ मैंने एक हिट फिल्म की है, होगी प्यार की जीत, और मिलियंस में फॉलोअर्स बढ़ चुके हैं, उसके व्यूअर्स बढ़ चुके हैं। और हमारा एक सॉन्ग था होठ लाली से रोटी बोर के, वो तो बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर हो चुका है। बहुत अच्छे दोस्त है, मेरा कहना क्या है, बहुत अच्छे हैं दिल के वो। मैं एक लड़की ने काफी बवाल किया है पेयर को लेकर कि बॉलीवुड में पेयर चलते हैं, नाम जोड़ा जाता है, चाहे वो राजेश खन्ना का हो, किसी का भी हो, लेकिन ये भोजपुरी में नाम जोड़ने चालू हो गए हैं। एक लड़की ने बहुत बड़ा खुलासा किया, यूपी की लड़की है, कि बाहर वालों को काम नहीं मिलेगा, वो सिर्फ केसारी के साथ फिल्में करेंगे, केसारी उसके साथ फिल्में करेंगे। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ मैं कहना चाहूँगी कि मैं भी इस इंडस्ट्री में बाहर से आई हूँ, मेरी कोई पेयरिंग नहीं रही आज तक। शायद ही कोई स्टार रहा होगा, मनोज तिवारी जी से लेके अभी तक के कल्लू तक सभी लोगों के साथ मैंने काम किया है, तो मेरा कोई पेयरिंग बन के मैं नहीं आई थी कि मैं किसी के साथ पेयरिंग में थी तो फिर मेरे को काम मिला। अब पेयरिंग बनने लगी है, नो डाउट, और मेरे ख्याल से ये ऑडियंस और आप लोग का कमाल है कि जो आप लोग पेयरिंग को इतना हाइप करते हैं और पेयरिंग को पसंद करते हैं, और ऑडियंस पसंद करती होगी शायद पेयरिंग को, तो वो हो सकता है। काजल में एटीट्यूड आ चुका है, मानते हो इस बात को? काजल को मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा नहीं, कि आई हुई लड़की लगता है एटीट्यूड आ जाता है, भागती है, मीडिया से भागती है, बड़ी बड़ी बातें करती है। केसारी बड़ी फिल्में होगी तो आप मीडिया पर इंटरव्यू देगी, नहीं तो नहीं। एक्चुअली काजल के बारे में मैं ज़्यादा इसलिए कमेंट्स नहीं कर सकती बिकॉज काजल को मैं पर्सनली ज़्यादा जानती नहीं हूँ, और उन लोग के क्या रिलेशन आपस में रहे हैं तो मुझे ज़्यादा नहीं पता है। जितना मैं मीडिया में देख रही हूँ, जितना इंडस्ट्री में गॉसिपिंग चलती है, सिर्फ उतना ही पता है कि कुछ चल रहा है। मुझे लगता है उन लोग का पर्सनल मैटर है, और वो किस तरीके से एक दूसरे को मीडिया में उछाल रहे हैं, उन्हें सॉर्ट करना चाहिए आपस में। थैंक यू। बहुत गर्मी है यार। नहीं तुम लोग तो जी मेरा नाम है एडवोकेट रूपाली शेट्टी। एक्चुअली अच्छा उधर है। हाँ हाँ जी जी जीवन धारा ने ये जो अवार्ड फंक्शन रखा है, मैं कहूँगी कि बहुत अच्छा उन्होंने जो कार्यक्रम रखा है, बहुत अच्छा उनका कार्यक्रम है, क्योंकि मैं गोविंद पांडे जी जो है उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि इतना अच्छा कार्यक्रम वो कर रहे हैं, और वर्षा कुलकर्णी जी हैं, वो उनका साथ दे रहे हैं, वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है इस जीवन धारा की। तो जीवन धारा आज जिस तरीके से कोविड के समय में जो अच्छा उपक्रम किया है उसने, वो बहुत ही अच्छा उपक्रम मैं कहूँगी, क्योंकि बहुत सारे एनजीओ हैं जिन्होंने बहुत सारा वर्क किया भी होगा, लेकिन मैं कहूँगी कि जीवन धारा एक अपने इसमें एक बड़ी एनजीओ है, क्योंकि उन्होंने बड़ी कम समय में बहुत ज़्यादा काम किया है। आपने जैसे पूछा कि महिलाओं के लिए मैं क्या कहना चाहूँगी जो घर पे बैठी है, सो मैं भी एक महिला ही हूँ और एक एडवोकेट हूँ, तो मैं चाहूँगी कि आज किसी को घर में बैठने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। आज हम कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, चलने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं कहूँगी कि हम चलेंगे, एंड तक चलेंगे। अब विवेकानंद जी के अगर बारे में कहा जाए तो मैं बहुत छोटी हूँ, उनके बारे में क्या कह सकती हूँ, क्योंकि वो एक ऐसी महान हस्ती है कि उन्होंने बहुत ऐसे कुछ कार्य किए हैं कि हम सभी को उनके बारे में सब कुछ पता है। तो मुझे जो ट्रॉफ़ी मिली है उसके ऊपर उनकी छवि होना, वो मैं अपने लिए गर्व की बात महसूस करूँगी। थैंक यू। ज्योति कामले,
जी, एक्चुअली ये अवार्ड जो है मैं मेरे लाइफ के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरा बचपन में एक मतलब पैर नहीं है, बाय बर्थ मेरा जन्म हुआ वैसा। और मैं डांसर हूँ, क्लासिकल डांसर, बॉलीवुड डांसर, मैं मॉडल भी हूँ। तो मैंने अपने लाइफ में बहुत कुछ स्ट्रगल किया है, तब जाके मैं अपने पैर पे खड़ी हुई। और इसका जो भी है कहते हैं ना, जो पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग जो बनाते हैं वुमेन को, वो मेरे हस्बैंड हैं जो वहाँ पर खड़े, और मेरे मॉम एंड डैड। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अभी आज यहाँ पर मैं जो खड़ी हूँ, एक ही सिर्फ चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो भी जिसको भी प्रॉब्लम है, जो भी जिनको भी मतलब जो लगते है कि ये नहीं कर पाएंगे कुछ भी, जो भी हो, मतलब जो नेगेटिव थॉट आती है, मैं चाहती हूँ उनको एक मोटिवेशनल स्पीकर बनूँ, जहाँ पे मैं बता सकूँ कि हम भी कर सकते हैं, हमें अगर चाहत है तो डेफिनेटली हम हासिल कर सकते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि जाहिर सी बात है वो दिमागी है, हमें एक पॉजिटिव वे में लेके जाता है। और मैंने आज तक कभी ऐसा सोचा नहीं कि मतलब मैं ऐसी हूँ तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, बल्कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। और इसका कारण मेरे मॉम डैड है, क्योंकि वो बचपन से मुझे ऐसे कभी रियलाइज़ नहीं करा है कि हाँ मतलब आप ऐसे हो। यहाँ तक कि दुनिया देखती है वैसी, ऐसा नहीं है, लाइक होते कुछ लोग जो मतलब वीकनेस है, हाँ नहीं कर पाएंगे, इनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलनी चाहिए। बट मैं पॉजिटिवली बोल रही हूँ, मैंने हर एक चीज़ ट्राई किया है, डांसिंग हो, एक्टिंग हो, या फिर कुछ भी हो, मैंने हर एक चीज़ में मौका अपना बोले ना चांस ढूंढने की कोशिश की है। और मैं सीरियसली चाहूँगी कि आगे मैं एक एक्ट्रेस बनूँ और डांसर बनूँ। तो मुझे ये एक पॉजिटिव फीलिंग है कि आगे कुछ हो सकता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। श्योर श्योर। एग्जैक्टली, मैं वो चीज़ बता